Good evening again, guys. I'll start with the session now. Am I audible? Just give me a quick confirmation so we can start. Okay, great. Just give me a quick confirmation that my screen is visible to all of you. Okay, great. Let's start with the session. So the session is about C, and C is a very old language. To be frank, it was built like it was first in use in somewhere around 1972, and उसे हम आज भी use करते हैं. So what is the reason that we are still using C? And even though how it compares to in today's language, today we have Python, Java, C++ है जिसमें inbuilt काफी सारी powerful functions होती हैं, and still we use this language called C. Now, what's the reason for that? And that would be because of its lightweightness, its portability, and its closeness to the hardware. Well, you can see C was made by this. Just a brief history about C. I won't make this long. C Dennis Ritchie ने बनाया था in 1972, and the reason जो C को हम आज भी use करते हैं, even though it is so old, is that its closeness to the hardware. Whenever there is interaction between hardware and software, जैसे तुम अपनी पेन ड्राइव को लैपटॉप में डालते हो, कुछ प्रोग्राम्स होती है जो उस पेन ड्राइव को रीड करके तुम्हें यूजेबल बनाती है. वो चीजें सी करता है. I mean the softwares are made in C. Then its portability. Once a C program is made, it can literally run on any kind of system. Your laptop, your mobile devices, your smartwatches, everywhere. So that is the reason कि C को हम आज भी इतना ज़्यादा prefer करते हैं, although we have so many powerful languages. And, okay, do we have any doubts? Please start the recording. Okay. Okay, now now this is a fun fact. Even though C is so old, so many languages are based on C. You can see some of the most powerful languages like C++, JavaScript, Python. All of these languages are based on C. तुम सीधा बोल सकते हो C जैसा कोई hard नहीं है. And the different components. Okay, that's enough of history about C. Before we start coding, I want to make sure that we are all on the same page. So I want to discuss about some components of C language. Okay, सबसे basic component of C language है constant. And constant हम उन चीजों को बोलते हैं जिनकी value फिक्स्ड होती है, वो कहीं भी कभी भी चेंज नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 5, तुम उसको इंग्लिश में लिखो उसकी वैल्यू 5 है, मैथ्स में लिखो तो वो भी 5 है, प्रोग्राम में लिखो उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी. वैसे ही सी में भी कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको तुम इनिशियली डिक्लेयर कर देते हो एज अ कॉन्स्टेंट एंड देयर वैल्यू विल नेवर चेंज. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स: इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग. सो लेट्स सी what are the different kinds of constants they hold. Integer means anything without decimal. Guys, just stay with me here for like 5 minutes. Once we get done with this theory, we'll directly start with coding. Right, the session on okay, I thought that's a doubt. Okay, so there are integer constants, which is basically any number without decimal. Then there are floating point constants, which is numbers with decimals. Then there are character constants. Now character can be literally anything, just a single character enclosed within single quotes. जब तक वो single quotes के अंदर enclosed है, it is a single character constant. And then there are strings, जिसके अंदर तुम double quotes के अंदर कैसे भी alphanumeric sequences डालो, letters डालो, numbers डालो, special characters डालो, spaces डाल दो, it will be treated as a string. Right, so that's the theory about constants. Let's see how we define a constant. On the top right corner, you can see here's a syntax for C, how to define a constant in C language. So before I start with coding, let's make sure we are all using the C compiler. You guys can open this compiler in a new tab so that we can all type the code as I do. We'll be on the same page. So just give me a quick confirmation once all of you have opened this C online compiler.
or you can use any compiler if you're using like anything. Okay, great. So first, let's see how do we define a constant. Here's the syntax on the top right corner. We use hashtag define to start the definition of a constant. Then we give the name with which we are going to use that constant. And then we give the value for that constant. Let's see how we do that. Is my text visible here? How should I zoom in? Okay. Okay, now it should be visible. So let's see how we define a constant. Start recording. I think the session is already being recorded. Recording on BB will not be available since some enter is okay. I think session is not being recorded, but if you have any doubts, you can ask me later. I will clear that. And let's see how we define a constant. So we already saw the syntax. We write hashtag define, name for the constant and the value. So let's say we want to make a constant, जैसे कि pi. We know pi is a constant, right? Pi की value change नहीं होती. It is 3.14 universally. So हमें constant define करना चाहते हैं जिसका नाम हम pi देंगे and उसमें pi की value हो, so that we can use it anywhere in the code later on अगर कभी जरूरत पड़ता है. So this is the syntax. Define. Then we need to write the name of the constant, that will be pi, and the value for that constant, that will be 3.14825. I guess इससे आगे मुझे नहीं आता इतना, ये constant है. So now let's हम कोड में कभी भी हमें pi का वैल्यू यूज करना हो, we can directly use this value pi instead of writing इतना बड़ा नंबर. तो इससे, और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हम पाई का वैल्यू अराउंड द कोड कितना भी कैलकुलेशंस कर ले, पीआई का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. इट हैज टू रिमेन द सेम थ्रू आउट द कोड. एंड अगर हम प्रोग्राम के टाइम पे इसको चेंज करने का कोशिश करते हैं, कोई एरर आ जाएगा, राइट? बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. So this is how we define a constant. Now let's see what are variables. Okay, so variables are basically containers. एक container के अंदर तुम कोई भी value डाल रहे हो and throughout the program you can do n number of calculations. और जितनी भी calculation तुम करते हो, right, तुम्हें वो calculation later on वापस से जरूरत पड़ सकती है, या फिर तुम जितनी भी calculations करते हो उसे तुम्हें as a text output भी दिखाना होता है. So we cannot do that अगर हमारे पास सिर्फ constant है. हमने calculation में constant numbers डाले, calculations करे, but उसको आउटपुट में कैसे दिखाएं? उसके लिए हमें उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ता है, सो दैट या तो उसको हम एज अ टेक्स्ट आउटपुट पे दिखा सके, अगर नेक्स्ट कैलकुलेशन में जरूरत पड़े तो वो भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. वी स्पेसिफाई द डेटा टाइप. द डेटा टाइप विल बी द काइंड ऑफ वैल्यू जो वो वेरिएबल स्टोर करने वाली है. Besides that, we need to give the name to a variable and we have to provide a value for it. And बीच में assignment operator है, जैसे equal to basically उसके right side में जो भी value है ना, वो उस value को left side वाले variable में transfer कर देगी. So before we start, before we actually code a variable, how to declare a variable, let's see what are the different data types that we can use. So these are the different data types in C language. We can use integers, long. Well, इसके अलावा भी काफी कुछ है. मैंने most commonly used variables यहाँ data types यहाँ पे mention करे. There are integers, there are long, float, double, character and string. So integer and long में तुम्हें question ये आ सकता है कि why do we need long when we already have integer? दोनों ही non decimal number store करते हैं. Well, उसका ये रीजन है कि इंटीजर एक हद तक नंबर स्टोर कर सकता है, लाइक 2⁻31 से बड़ा नंबर वो स्टोर नहीं कर सकता. उसके लिए हमें लॉन्ग चाहिए होता है. देन लॉन्ग 2⁻, आई गेस 64, 63 तक, 2⁻63 उतनी बड़ी नंबर तक स्टोर कर सकता है. देन वी हैव फ्लोट. व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एज फ्लोट, वो डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर कर सकता है एंड इसकी मैक्सिमम प्रिसीजन 7 डेसिमल प्लेसेस है. आई रिपीट, इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एज फ्लोट, वो मैक्सिमम 7 डेसिमल प्लेसेस ऑफ प्रिसीजन तक एक नंबर स्टोर कर सकता है.
Is that a doubt? Do pay attention to the probable questions he will be mentioning. Yep, yep, guys. Pay attention. I will be asking questions to you in between. So yes, now see the difference between float and double. When do we should know when to use double and when to use float. देखो नॉर्मली तुम्हारे पास जब प्रोग्राम आएगी ना, तुम्हारे पास पहले से आइडिया रहेगा कि किस टाइप के इनपुट्स मिलने वाले हैं. इट विल बी मेंशन्ड इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रोग्राम. So don't worry about that, but you should know how to figure out कौन सी डेटा टाइप यूज करनी है. जो फ्लोट डेटा टाइप है वो मैक्सिमम नंबर के बाद 7 डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर कर सकती है, एंड डबल इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज डबल 15 डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर कर सकती है, राइट. देन देयर इज कैरेक्टर जो 1 बाइट ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड करता है, मतलब रिजर्व करता है मेमोरी में, एंड विद इन सिंगल दे आर इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स. सो let's see how do we declare a variable. I think I already need a code for that. Every data type fixed or it depends upon compiler. Okay, that depends only for integer, because integer में can you explain long? Okay, coming to that in a bit. तुम्हारे कंपाइलर में इंटीजर का साइज वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस बिट की कंपाइलर, 32 बिट या 64 बिट. अगर 32 बिट की है तो 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज होगी इंटीजर की. अगर 64 बिट की है तो इंटीजर का साइज 4 बाइट्स होगा. बट नॉर्मली इजी यही है कि तुम 4 बाइट्स एज्यूम करो. कैलकुलेशन मतलब that is the general syntax followed by the standard GCC compiler जो हम यूज कर रहे हैं. Can you explain long? Okay, long data type is when you let's say तुम्हारे पास एक ऐसी नंबर है जिसकी साइज 2 raised to the power 31 से बड़ी है. To store that kind of number वो इंटीजर पे नहीं जाएगी. You can try this. तुम इंटीजर पे एक बड़ी नंबर स्टोर करके देखो एक इंटीजर डेटा टाइप पे, उसकी वैल्यू -1 प्रिंट होगी, एक्चुअल वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगी, वो स्टोर नहीं कर सकता. सो इन दैट केस वी नीड टू यूज लॉन्ग डेटा टाइप. Okay, double is to store. I'm showing you an example. ठीक है, clear हो जाएगा. Okay, I will erase this part. Let's say we want to declare a variable of type integer and we want to store some number in it. तो उसकी syntax ये है. If you can see here for data type integer, the keyword is int. We need to mention int in it, and the type will be int, and let's give a name to that variable. For example, number is equal to, let's say, 10. So this is how declare a variable. Data type followed by name of the variable, assign equal to sign, and then the value for that variable. And for example, if you use a type double, then okay, difference between float and double someone was asking. If you declare a variable as float, then okay, let's name this decimal number, and the maximum number of points, that number of digits that are allowed after point is 7. Maximum you can store like 1 2 3 4 5 6 7. You cannot go beyond that. Float इससे ज़्यादा precision hold नहीं कर सकता. 7 decimal places इसकी maximum value है. But when you go with double can store a number like up till 15 numbers after decimal points like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on. 15 numbers को store कर सकता है. So that is when you need to use double. Just give me a quick information that you are clear. How to store mobile number, 10-digit number. Okay, now 10-digit number, that won't be a problem. Integer long दोनों में save हो जाएगी वो. You can just directly type जैसे int num है, यहाँ पे तुम अपनी number लिख सकते हो. Won't be a problem. As long as that number is smaller than 2 raised to the power 31, integer को आराम से store कर सकता है. It won't be a problem. अगर integer नहीं store कर पाता, then you need to declare it as long, and long can store as long as 2 raised to the power 63. Please explain long. Second. What's limits.h? Okay, limits.h is basically हर एक डेटा टाइप कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम वैल्यू होल्ड कर सकती है. यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है int max,
मैंने इसको एग्जांपल दिखाने के लिए limits.h इंक्लूड करा है. इसके एग्जांपल लेट्स सी. Okay, so here I'm going to explain you कितना storage लेता है data type. You know, this is a normal problem that you might face even mid sem ये question आ सकता है. Like तुम्हें 3 example दिया रहेगा int. Before that I will tell you one thing guys, अगर तुम एक variable को int declare करते हो तो उसकी जो specified size है ना 4 bytes, हम हमारे कंपाइलर में 4 बाइट्स है, सो डू नॉट वरी अबाउट 2. तो वो 4 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करके रखता है, ठीक है. वेदर यू कीप इट एम्प्टी, वेदर इट इज पार्टिकली फिल्ड, या फिर इंटीजर की मैक्सिमम बड़ी साइज जो भी वो स्टोर कर सकती है वही डाल दो उसमें, साइज सेम रहेगा. वो 4 बाइट्स का स्टोरेज ही यूज करेगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी विल यूज 3 वेरिएबल्स एम्प्टी, एंड इसको हम डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, कोई वैल्यू नहीं डाल रहे. We will use another variable called int and let's say half filled, मतलब partially, and we will put a value called 10. कुछ छोटी वैल्यू है, पूरी इंटीजर की स्पेस खत्म नहीं करेगी. And we will use another value called filled. पूरी filled है ये वैल्यू, and इसमें हम डाल देंगे max. Okay, just to make you guys sure, max में इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है. This is the highest value that int can store. No excuse. Okay, what is string? Okay, so we'll come to string in a bit. It is a type of array of characters. It is not a primitive data type in C. उसको imitate करते हैं. Okay, so before we move on, I want to make sure you know about this function called size of. Like size of function basically तुम्हें तुम्हारी साइज ऑफ फंक्शन बेसिकली वो जिस डेटा टाइप का वो वेरिएबल है, मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है int empty. अगर तुम साइज ऑफ के अंदर empty लिखते हो तो वो कितनी स्पेस यूज कर रही है वो वैल्यू वो प्रिंट कर देगी साइज ऑफ, ठीक है, मतलब रिटर्न करेगी एंड देन वी कैन यूज इट टू प्रिंट. सो आई थिंक इससे पहले बेटर होगा कि वी प्रिंट अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. सो लेट्स सी दैट. printf about hello world program. 1 second guys. So can you please give WhatsApp links here so that I can join WhatsApp group link? I'm not sure what you are referring to. Which group? Size of. Yes, coming to size of. Yeah, I will come to size of just in a moment. Before that, I need to make sure कि हमने एक hello world program execute करिए so that we know how to use printf statement. Okay, so let's write a code from beginning, and इसमें हमारी गोल ये रहेगी कोड की कि हमें एक सिंपल hello world text आउटपुट करके दिखाना है कि आउटपुट स्क्रीन पे एक सिंपल hello world text आ जाए, ठीक है. Then I will talk about size of. So let's say first we need to import the necessary header file. That is the most important task in a C program. Import header file. Now to do that we should know what is a header file, and I'll show you an example. Wait a second guys. Okay, I think I did keep a file for headers. So basically these are called header files. तुम्हारी header files are basically a C program which has certain they define some common problems that we need to handle. Like मान लो एक text तुम्हें print करके screen पे दिखानी है, तो उसके लिए pre-written header file already है stdio.h, जिसको हम directly use कर सकते हैं to print any kind of text. So let's see how we do that. Using stdio.h we will print simple text to the output screen. So the syntax to include a header file is we need to use hashtag include and then mention the library name within angular brackets. Let's see, we will include stdio.h. That's the name of the file we want to import. Stdio means standard input output. Now this is a C program which has been pre-written by someone, and this handles exchange of information
यूजर के इनपुट्स लेने में हेल्प करता है एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज को आउटपुट करने में हेल्प करता है. So the next task in a someone saying something. Okay. Int mean and so this is guys, this is the basic template of a C program. Basically इतना part तुम्हें लिखना है हर C program में. This is the smallest possible C program that you can write. ये वाली part को भी exclude कर सकते हो, library inclusion वाली part not important. Int mean and return 0 ये सबसे important part है. जब तुम एक program को execute करते हो, जो तुम्हारी main function ही सबसे पहले execute होती है, फिर इसके अंदर जितना जो कोड होगा उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. सो राइट नाउ आवर गोल इज टू प्रिंट अ टेक्स्ट टू द आउटपुट स्क्रीन. द फंक्शन फॉर दैट इज printf एंड व्हाट इज रिटर्न फॉर. रिटर्न इसलिए यूज करते हैं बिकॉज जब सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो जहाँ पे वो रन हो रही है वो उसको एक वैल्यू देती है 0. इट मीन्स द एग्जीक्यूशन वाज सक्सेसफुल और वो एग्जिट होती है. So that is why we need to mention return, and since 0 is an integer, we are declaring main as int. Clear? I hope that clears your doubt. Just give a quick confirmation that you got it. Okay. Include konayo.h header file में लिख सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो अगर तुम्हें यूज करना है. Konayo.h is for character input and handles some clearing the screen and that kind of functions provide करता है. stdio.h. Okay, we write stdio.h to make sure that we can देखो basically जब हमें टेक्स्ट इनपुट लेना होता है यूजर से या कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे दिखानी होती है, we can there are certain functions that we need to do. तुम्हारे डिस्प्ले एंड प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेशन होता है, काफी कॉम्प्लेक्स चीजें इन्वॉल्व होते हैं उसमें जो हमें हैंडल नहीं करना पड़ता बिकॉज वी आर यूजिंग stdio.h. वो इन चीजों को हैंडल करता है एंड वो एक फंक्शन प्रोवाइड करता है printf जो कि stdio के अंदर डिफाइंड है. ये printf फंक्शन, printf is a part of stdio.h which we are utilizing to print text in the output screen. Now how we can do that is हम printf लिखते हैं and within double quotes we mention the string that we want to print. For example, hello world. Now if we hit compile, I assume like guys तुम लोग भी साथ में ही कर रहे हो, so we'll progress with the code similarly. And yes, you can see the output in the console. It's hello world. So basically हमारा text जो हमने डाला था as it is print हो गया. Right, now let's see how to use variables and then print some text with that. Before that, I have quiz for you. We learned about variables, and before that, we should know what are keywords. First, start करते हैं. Can we use cout or cin? Guys, cout or cin, it is not for C language. It is a part of C++. It wasn't added to. I was added, but I have registered to it now. I know about this info from my friend. Okay. Okay, we can sort that out after the session. You will be added. I think. Okay, thanks. So before going on to header files and writing using variables, we should know what are keywords. So basically, जैसे English language में certain words होते हैं, yes, no, stand, sit, इनकी कुछ predefined meanings होती है, right? अगर तुम्हें कोई yes बोलता है तो समझ जाते हो उसका मतलब क्या है. बट तुमने कभी देखा किसी इंसान का नाम yes होगा या no होगा? No, right? Because in ये words reserved होते हैं, इनको हम use नहीं कर सकते. Similarly, C language में कुछ ऐसे reserved words होते हैं जो सिर्फ sort of certain purpose के लिए use होते हैं, जैसे int to declare a data type, जैसे char to declare that a variable is going to hold characters. And okay, so basically overall हमारे C language में around 32 different keywords हैं. इन सबको हमें याद नहीं करना, वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा. लेट्स डायरेक्टली सी व्हाट आर द
rules to name a variable, because right now we are going to use a code, and that will make use of variables. So these are the rules that your program name of the variable must have. It should start with a letter or a underscore. ठीक है, एंड अंडरस्कोर इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर जो हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में. Now it should start with the letter underscore. I told that, and there is no rule कि variable का नाम कितना बड़ा होना चाहिए. It can be as long as 31 characters, but इससे ज़्यादा रखने पे किसी compilers में problem आ सकता है, सब में नहीं आती. और most important point is point number 4. It should not be a keyword. तुम किसी keyword को as a variable use नहीं कर सकते. Now point number 5 पे देख सकते हो. These are some examples of valid keywords जो हम यूज कर सकते हैं. एंड आई विल रिकमेंड यू गाइस कि जब भी कोई वेरिएबल नेम यूज करते हो, कीप सम मीनिंगफुल नेम. लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग n फॉर नेम, यू कैन डायरेक्टली यूज name नेम एज अ वेरिएबल. तो कुछ मीनिंगफुल नेम्स रखना हेल्प करेगा. So I will give you 30 seconds to look at the rules once again, and I'll give you a quick quiz about it. Clear? I hope अभी तक मैंने जितना बोला है सबको क्लियर होगा. Just give me a quick confirmation, or you can mention if you have any doubt. Okay, so I will open this page again, read the rules, and I'll give you a small quiz. And wait for 30 seconds. Maybe get a lot of different between stdio and conaio.h. Yep. Okay, I will come to that when we discuss about header files. But just to be sure, conaio तुम्हें अभी यूज नहीं करना पड़ेगा. वो तुम्हें तभी यूज करना जब तुम कैरेक्टर्स के साथ डील करते हो. वो उन्हीं फंक्शंस में काम आता है. एंड stdio इट इज फॉर इन जनरल कोई भी टेक्स्ट टेक्स्ट इंटीजर्स इनपुट लेने के लिए एंड आउटपुट देने के लिए यूज होता है. conaio इज मेनली फोकस्ड फॉर कैरेक्टर्स and strings. Maybe get a PPT of this. हाँ, PPT मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा. So right, I assume अभी तक सबने रीड कर लिया है. So यहाँ पे कुछ variables हैं जो valid हैं और कुछ नहीं है. So the first one who gives me a correct answer will get a quick shout out. I'll give you some time solve करके answer type करना. एक बार में answer type करना, ठीक है? जो जो options valid है, A B C D E F G. Let's see who gets it first. Lot of people have seen E is valid. Okay, guys, just tell me the invalid ones. Just drop the text for the invalid ones. Okay, B C E F G, yes, that's correct. सबसे पहले किसने दिया था B C E F G? कोई स्पैम भी कर रहा है शायद, जितना मुझे लग रहा है. B C E F G. Okay, there is one name for B C E F G जो सबसे पहले दिया था. ओके, ये नाम मैं तीसरी बार देख रहा हूँ, आई गेस. एनीवे, PCEFG नॉट वैलिड. ग्रेट. रिद्म अग्रवाल, इसका आंसर सबसे पहले था. इससे पहले और कोई BCEFG नहीं. यस, बट एवरीवन वाज मेंशनिंग A, so valid ones. Okay, great. Most of you are correct. BCEFG. Firstly, you asked valid ones. Yeah. Okay, claps for everyone. Okay, we'll do more quizzes like this, don't worry about it. Okay, this was the solution,
एंड ओके आई विल टेल यू कौन सा नहीं था. बी नहीं था क्योंकि वो लेटर एक नंबर से स्टार्ट हो रहा था. और ये क्वेश्चन तुम्हारे मिड सम में ना तुम लिख के ले लो, 2-3 आ ही जाएंगी वैलिड और इनवैलिड को सेलेक्ट करने के लिए एमसीक्यू में. तो बी नहीं है बिकॉज ये 3 से स्टार्ट हो रहा है एंड द रूल इज कि वो यू नो या तो अंडरस्कोर वरना एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. सी नहीं है क्योंकि इसमें एट द रेट सिंबल यूज हो रहा है which is not allowed. Only underscore is allowed as a special character. D is a valid name. E नहीं है because dollar sign है. F नहीं है because of 2 reasons. इसमें hashtag यूज हुआ है एंड इसमें मैंने स्पेस यूज करा है. कैंसिल और कोविड के बीच में एक स्पेस है which is not not allowed in naming a variable. And then G, it's not a valid name because इसमें hyphen है. Everyone clear till here? Okay, great. Now let's go with the next part. Okay, we already discussed here header files and someone was asking Kunayo.h and stdio.h the difference. Basically, Kunayo is more focused on exchange of characters, character input and output, and also it mentions gives a function to clear the entire screen. जो stdio.h नहीं देता, but stdio.h is it handles everything, input of numbers, strings, or display कराना. We'll use that now. stdio.h कोड करके देख लेते हैं. Yes, so okay, काफी हमने theory कर लिया. Let's get started with the code. The thing, you should mention, just make sure you mention this, steps while writing a code. Think of the algorithm and then write your code. And जब तुम अपना code complete कर लेते हो, उस phase में तुम्हारी code को source code बोला जाता है. This is something that you understand. And then you compile. So what compile means is it is done by a compiler. And जो code हम लिखते हैं वो English language में हमें समझ में आता है. But the computer does not understand that. The computer को सिर्फ zeros and ones समझ में आती है. तब इसीलिए हम compiler use करते हैं. Compiler is a program that converts instructions into machine code. Machine code means zeros and ones. And machine code is machine independent. वो computer पे भी चलेगा. वो तुम जहाँ पे literally उसे use करना चाहते हो, वो that is applicable. It is a machine independent code, and this is the reason why C is called a portable language. ठीक है? And the compiler converts it into machine code or a lower level form so that it can be read and executed by a computer. Standard compiler for C is GCC. इसमें बहुत ज़्यादा support है, बहुत लोग use करते हैं. So if you're using GCC, तुम्हें कोई error आता है, Google करते हो, so 90% chance है कि तुम्हारे जैसा error किसी को आ रखा होगा, and you will get a solution for that. So इसलिए मैं recommend करूँगा GCC use करने, and बाकी के वैसे भी obsolete हो गए, use किए होते हैं. Okay, so that's the theory I wanted to talk about. अभी code start करते हैं. So hello world program हमने use करा. Now let's say instead is that a doubt? Go CO calc. Please tell me how to use scanf. Okay, let's start with scanf. तो देखिए scanf से हम user से input कैसे लेंगे. So before that, scanf is a function जो stdio के अंदर present है. So to use printf or scanf, हमें stdio.h पहले include करना है, which we have already done here. Now we'll use scanf, and the method to use scanf is within double quotes हम एक format specifier देंगे. अब format specifier I discussed here in the table. Basically मान लो तुम्हें एक integer input लेना है, then in scanf you have to mention the format specifier which is %d. You can see it's %d for integer. अगर तुम्हें integer input लेना है then you have to write %d. अगर long input लेना है तो you have to mention ld, long integer. For float you have to use %f, and you can see LF for double and %c for character. And just so you guys know, %t इसको तुम्हें दो कैरेक्टर जैसे दिख रहे हैं, but actually C language उसे एक सिंगल कैरेक्टर जैसे ट्रीट करता है. ठीक है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है. इट जस्ट टेल्स द कंपाइलर कि इस scanf पे कौन सा वैल्यू एक्सपेक्ट करना है, राइट. सो लेट्स से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int number. And since it is of type int, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %d. scanf में हम within double quotes उसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे. उसके साथ we will mention the variable जिसमें हमें ये input स्टोर करना है.
and that will be number. Well, besides number हमें एक ampersand sign use करना है. ये scanf को mention करेगा कि at this address, at the address of number. Address in the sense memory पे जिस address पे stored है. scanf directly वो value input कराएगा user से and उस address पे डाल देगा, and we are referring to that address by the name number. Scanf again. Okay, so basically scanf function is used to take input from the user. वो scan करता है inputs को और उसको दो arguments चाहिए. The first argument is the type of value that we want to input, which in our case is int, and हम उस data type की format specifier लिखते हैं. For int it is %d. So that's why I mentioned %d within double quotes, and उसके साथ हमें एक और argument देना पड़ता है comma से separate करके. The address of the variable. Just think of the variable. जिस variable में हमें वो scanned value को ट्रांसफर करनी है. फॉर एग्जाम्पल हमें इनपुट लेके नंबर वेरिएबल में वो वैल्यू डालनी है. देन वी विल मेंशन एम्परसेंड नंबर. एम्परसेंड इज जस्ट द नेम ऑफ दिस सिंबल हियर. तो इससे क्या होगा कि नंबर वेरिएबल कहीं पे वो int है, 4 बाइट्स रिजर्व करती है स्टोरेज. तो जहाँ पे भी वो 4 बाइट्स लेके बैठा है, स्कैनर उस परसेंट की जो वैल्यू स्कैन करेगा उसको लेके वहां पटक देगा. ठीक है, और वैल्यू हो गया स्टोर नंबर में. अब लेट्स वी विल जस्ट प्रिंट आउट दैट वैल्यू. printf, चलो नीचे printf लिखा हो वहीं पे यूज करते हैं. printf hello. Okay, is that a doubt? Yes, it's working fine now. And what's the use of ampersand symbol? Ampersand symbol basically scanf को उस variable की address देता है. scanf variable नहीं लेता, उसको variable की address चाहिए. Now address is like a computer की जो storage होती है, the memory, वहाँ पे जिस address पे number variable exist करता है वो जगह की वो address दे देगा. And scanf जो वैल्यू को स्कैन करेगा उसको उस वेरिएबल में डालना है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट लेक्चर. यस, व्हाट इफ वी डायरेक्टली राइट नंबर? डायरेक्टली राइट नंबर, आई डिडंट गेट इट. कहां पे नंबर लिखना है तुम्हें? यू एंटर्ड एंड लेट्स सी हमारे पास एक वेरिएबल है, हमें उसकी वैल्यू आउटपुट करानी है. then all we need to do is mention %d somewhere in printf. जैसे हमने पहले टेक्स्ट मेंशन करा था, डबल कोट्स स्ट्रिंग्स में हम टेक्स्ट डाल रहे थे, तो टेक्स्ट के साथ हम %d मेंशन करेंगे बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ वैल्यू दैट वी वांट टू प्रिंट, राइट? क्योंकि हमने नंबर को int डिक्लेयर करा है. एंड उसके साथ हम यहाँ पे नंबर डाल देंगे जो कि हमारे वेरिएबल का नाम है. तो बेसिकली क्या होगा, %d सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और वहां पे नंबर का वैल्यू आ जाएगा. इट विल बी क्लियर व्हेन आई राइट. ओके, इसमें एक छोटी सी एरर है. अभी जब इसको रन करूंगा तो मैं लगेगा कि प्रोग्राम रुक गया है. यहाँ पे नीचे देखो कर्सर ब्लिंक हो रही है. स्क्रीन बड़ा करता हूँ एक सेकंड के लिए. ओके, यहाँ पे देखो तुम्हें लगेगा कर्सर ब्लिंक हो रहा है एंड प्रोग्राम रुक गया है, राइट? बट एक्चुअली वो रुका नहीं है, वो इनपुट के लिए वेट कर रहा है. If I write 10 now and press enter, then it will show me the output. So इस एरर को अवॉइड करने के लिए कि तुम्हारे यूजर ऑफ द जो तुम्हारे प्रोग्राम को यूज कर रहा है उसे लगेगा प्रोग्राम अटक गई है, we write something called input prompt. ठीक है, बेसिकली इसको मैसेज मान लो इनपुट के लिए कि तुम्हें क्या इनपुट करना है. दिस विल टेल द यूजर व्हाट टू टाइप. सो हम नॉर्मली हम एक इनपुट प्रॉम्प्ट यूज करते हैं सो दैट स्कैनर देख के किसी को ये ना लगे कि प्रोग्राम अटक गया है. फॉर एग्जांपल हमने लिखा ड्रॉप एन इंटीजर, राइट, \l. ओके, \l मैं बाद में बताता हूँ. लाइक दिस, ड्रॉप एन इंटीजर. नाउ इफ आई हिट एंटर अगेन, इट विल गिव मी एन इंस्ट्रक्शन कि मुझे क्या टाइप करना है. सेकंड, हाँ देखो यहाँ पे आया ड्रॉप एन इंटीजर. नाउ आई विल राइट 1000 एंड प्रिंट इट एज एन आउटपुट. हेलो वर्ल्ड, यू एंटर्ड 1000. यहाँ तक सबका क्लियर है? तुम पहले अपने कोड में भी ट्राई कर लो, अगर एरर आती है तो बताओ. व्हाई डू वी यूज %d? ओके, वी यूज %d बिकॉज आई एम यूजिंग इंटीजर, राइट? मैंने यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है नंबर उसको int डिक्लेयर करा है. एंड I already mentioned this while discussing the theory कि
जब हमें इंटीजर वैल्यू यूज करनी होती है, हमें उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डालना पड़ता है, बिकॉज कंपाइलर को पहले से बताना पड़ता है कि किस डेटा टाइप की वैल्यू एक्सपेक्ट करनी है, राइट। तो उसलिए हमें यहाँ पे %d डालना पड़ता है, सो दैट द कंपाइलर, यहाँ पे जो इनपुट स्क्रीन आ रही है ना नीचे, एक सेकंड में एक और बार रन करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे नीचे ये जो इनपुट स्क्रीन आ गई, look here where the cursor is blinking, here the compiler is now expecting %d, which means an integer. इसीलिए हम %d डालते हैं, so that the compiler will know कैसा वैल्यू एक्सपेक्ट करना है, and once we type the value, if it matches the kind of data type जो कंपाइलर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो तुम्हारा प्रोग्राम स्मूथली रन हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं और कुछ अलग वैल्यू डालूं, so this is why I think तुम्हारा एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा %d क्यों डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे %d डाला है मैंने, बिकॉज आई एम टू मेक श्योर दैट जो इनपुट आ रही है वो एक इंटीजर है। मान लो मैं कुछ उल्टा सीधा लिखता हूँ ऐसे कुछ, नाउ आई हिट एंटर, देखो 0 हट गया। इसका रीजन ये है कि कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, बट जस्ट टू बी क्लियर, तुम ये जो इनपुट मैंने लिखा है इसका वैल्यू कहीं तक 0 नहीं है, एंड 0 प्रिंट हुआ। नाउ दिस इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे %d लिख रहे हैं, सो दैट कंपाइलर को पता होगा क्या आने वाला है। Return 0 tells the compiler to give integer output of the program part. Okay. So okay, I think इस progress पे चलते हैं। Okay, then there are something called arithmetic operator. Do you guys know how to write arithmetic, how to use arithmetic operators in C program? Basically, arithmetic means तुम्हें हमें addition subtraction करना है। No, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट सबको यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। INT A B printf ड्रॉप टू नंबर्स, मैंने इनपुट प्रॉम्प्ट डाल दिया एंड दो नंबर्स इनपुट होके A एंड B में स्टोर हो जाएंगे। यस, यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ वैल्यू दैट यू वांट टू इनपुट एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। %f डाल दो, एंड यहाँ पे मैंने %f लिखा है। सो हियर द कंपाइलर विल बी एक्सपेक्टिंग डेसिमल वैल्यूज। यू कैन राइट इंटीजर वैल्यूज, बट जैसे तुमने 5 लिखा तो 5.0 हो जाएगा, और तुम डेसिमल नंबर्स पे लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बट यू डिक्लेयर्ड INT। हाँ, मैंने INT डिक्लेयर करा था, वो लास्ट वाले एग्जांपल में था। दिस इज अ न्यू प्रोग्राम। ओके, सो नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स A एंड B, जिसमें हमने कुछ वैल्यूज इनपुट कर दी। when we run, उसमें कोई वैल्यूज इनपुट करेंगे। so now this is how you use arithmetic operators in C. मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ओके वेट, दिस शुड बी फ्लोट। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा फ्लोट सम, एंड मैंने उसमें A और B का सम स्टोर कर दिया। फॉर दैट आई जस्ट हैव टू राइट A प्लस B। सिंपल, जैसे मैथ्स का ऑपरेटर होता है वैसे यूज करना है। Okay. Now you can see the same goes for difference, which gives me the difference of two numbers or the subtraction, and then I have product which stores A into B. A into means asterisk, asterisk basically A और B के values को multiply कर देगा। Then we have something called division, A mod A divided by B, and the last one is remainder. ये percentage symbol signifies modulo division. Modulo division means वो division करने के बाद जो remainder बचती है ना, वो return करेगा। जैसे for example मान लो मैं 5 mod 2 लिखता हूँ, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जब तुम 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 बचती है, राइट सर? Okay, because we are using two inputs, how can we expect float value? We are expecting, why do we have to write %f 2 times? %f 2 times because we want two values, and how can we expect float value? We are not expecting float values, हमें पता है कि हमें float values को handle करना है। This is just a data type, it's your choice। तुम जो value डालोगे कंपाइलर वही value expect करेगी, and this is how you make the compiler tell the compiler what to expect. You mention its particular format specifier। तुम्हें इंटीजर डालना है, तुम %d लिखो, फ्लोट डालना है %f लिखो, बहुत बड़ी इंटीजर चाहिए %ld लिख दो।
ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने दो नंबर्स इनपुट किया एंड उसकी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर रहे हैं, राइट। तो मान लो मैं मॉड्यूलो का आउटपुट दिखाता हूँ, प्रिंट एफ पी mod b is equal to percentage d a mod b is equal to percentage f, right? I'm using percentage f because यहाँ पे मैंने rem को float declare करा है and I want to print the value of rem and I'll use backslash n यहाँ पे। बैकस्लैश n के बारे में मैं बताता हूँ, वो बेसिकली लाइन चेंज करता है। सो a mod and हम rem का वैल्यू प्रिंट करेंगे। सो लेट्स गिव अ वैल्यू फॉर a and b, let's say I'll give 5 and 2, so 5 and 2। one second, मैंने रिमाइंडर rem यूज कर दिया। drop numbers percentage f modified division। Okay, same error coming in mine. 1 second, I'm trying to cut out. Percentage it expects float, but argument 3 has type int. Line number 19। एक सेकंड, मैंने कोई टाइपिंग मिस्टेक करी है। ओके सॉरी, एरर इसलिए आ रहा है, मैंने वैल्यूज को int डिक्लेयर करा था स्टार्टिंग में। इट इज फ्लोट। Okay, modular division, binary float, invalid operands to binary have float and float। Okay, please 1 second, I'll use it int and बाकी पार्ट्स को मैं करूँगा कमेंट। Since I'm using int, I'm going to use percentage d as the format specifier and int remainder में a mod b, that is उसकी mod value store हो जाएगी, right? And printf में हम उसकी value check कर रहे हैं क्या आने वाला है। think GDB compiler पे तो सही काम कर रहा था। Okay, a mod b is 1, so 5 mod 2 value is 1 because 2 से divide करो तो ये आ जाएगा। ओके, एंड एक और एग्जांपल, तुम ये मॉड कहाँ पे यूज कर सकते हो। लेट्स से मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो तुम्हें क्वेश्चन एक नंबर देता हूँ n एंड आई टेल यू वेदर इट इज इवन और ऑड, सो हाउ विल यू डू दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि तुम मॉड इसमें मॉड ऑपरेटर यूज कर सकते हो, परसेंटेज। एग्जैक्टली, mod 2 is 0, great। So yes, there you are making a comparison, that is a relational operator, that is our next topic। So let's see how do we use this equal to sign and all of that। Okay, so basically these are all the relational operators that are available in C। यहाँ पे मैं input a लेके मैंने declare कर दिया a and b 10 and 10 and जो relational operators होते हैं ना, वो तुम्हें दो ही output दे सकते हैं, 1 and 0। 1 is true, 0 is false। I've mentioned that here। And these are the relational operators in C language: greater than, equal to, less than equal to, and equal to which means equality। ये वाली ऑपरेटर ये चेक करते हैं कि a and b में सेम वैल्यू है या नहीं है। and then there is not equal to, which means it will return जैसे मान लो a and b में वैल्यू 5 है and we use not equal to, it will return us the value called false, right?
ओके, वाई टू टाइम्स इक्वल टू मीन्स सिंगल इक्वल टू बेसिकली हम यूज करते हैं जब कोई वेरिएबल में हम वैल्यू डालना होता है, वो कंपेयर नहीं करता, वो असाइन करता है। तो अगर हमें कंपेयर करना है, कुछ डिस्टिंक्ट फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज वाई दैट इज डबल इक्वल टू equal, it is called equality operator. So these are the six operators that are available in C language, and इससे तुम काफी लॉजिक्स बना सकते हो इन्हें कंबाइन करके। सो तुम्हें एक हिंट देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें ऊपर ए और बी की वैल्यूज दिख रही है, राइट? एंड ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू होती है देन इट विल, जो वैल्यू रिटर्न करेगी इट विल बी 1, एंड अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, दिस हाईलाइटेड पार्ट विल बिकम 0, राइट? वो उन्हें कंपेयर करता है। सो और वो सारी वैल्यूज को मैं RES में डाल रहा हूँ, एंड देन मैं उन्हें प्रिंट कर रहा हूँ। सो सिमिलरली यहाँ पे बैक टू बैक 6 ऐसे कंपेरिजन्स हो रहे हैं, एंड मैं सबकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। सो कैन यू गाइस टेल मी ऑर्डर में क्या आउटपुट आने वाला है इस चीज का? दिस इज बेसिक और ये एल्जेब्रिक कंपैरिजन, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर रहे हैं। अगर ट्रू है तो मेंशन 1, अगर फॉल्स है तो मेंशन 0। कैन यू गाइस टेल मी आउटपुट क्या आने वाला है? 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1। Well, it will give in 1 1 0 because due to binary digits. हाँ, वो 1 and 0 देगा क्योंकि बेसिकली एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बूलियन मींस ओनली बाइनरी डिजिट्स, 0 and 1 ही आएंगे आउटपुट। 0 0 1 1 0, ग्रेट। सबसे पहले आउटपुट दिया था सार्थक ने। ओके, मैंने कुछ फनी करा तो था दिखाने के लिए। Whoever gets the first answer, let's see. SH इसने दिया था सार्थक ने। ओके, आई विल टाइप हियर सार्थक। ज़्यादा कुछ नहीं था, दिस वाज द शाउट आउट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, आई गेस दैट वाज अ बिग शाउट आउट। ओके, लेट्स सी। 1 1 0 0 1 1 0 1, यस, यही करेक्ट आंसर है। एंड इट वाज, इससे पहले भी किसने दिया था? ओ ये सॉरी, आई स्किप्ड। give a quick shout out again. Shout out. Let's come back to the session. 0 0 1 1 0 1. Okay, sorry. So the answer is, the reason that the output is 0 0 1 is because मैं तुम्हें रन करके भी दिखा देता हूँ पहले, so that you can see the output. Okay, now a greater than b is given as 0. Well, that is because a में value है 10 और b में value है 20. Now guys tell me, is 10 greater than 20? It is false, right? इसीलिए 0 है। a greater than equal to वो भी false होगी, 10 is not greater than equal to b 20, इसलिए output 0 है, that is false, and same thing नीचे तक हो रहा है। That is the output was 0 0 1 1 0. Great. So I think अभी मान लो मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, यू हैव टू टेक 2 इनपुट्स A and B एंड यू हैव टू प्रिंट द लार्जर वन आउट ऑफ देम। इसके लिए कोई मुझे सिर्फ इफ कंडीशन, मतलब तुम्हें क्या कंडीशन यूज करनी पड़ेगी वो बता सकता है? लाइक तुम्हें कौन सा कंडीशन यूज करना पड़ेगा? A greater than equal to B if else। ओके, इफ के अंदर तुम क्या लिखोगे? कंपेयर कैसे करोगे A and B को टू प्रिंट आउट द ग्रेटर वैल्यू? वाइल नहीं, वाइल यूज होता है लूपिंग के लिए, विल कम टू दैट लेटर। अभी मैं सिंपल कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। यस, ग्रेटर, ग्रेट। सो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इफ एल्स वर्क्स। इफ एल्स, सो बेसिकली ये सिंटैक्स है इफ एल्स का। तुम्हें इफ ये कीवर्ड लिखनी पड़ेगी, इफ दिस इज अ कीवर्ड, एंड देन विद इन ब्रैकेट्स तुम्हें कंडीशन देना पड़ेगा, right? Now that condition is anything that gets 1 and 0. So for example, जैसे previous output में हमने देखा था कि ये values जो थी नीचे, zeros 1 1 0 1, ये जो condition है ना a greater than b, ये ऐसी values return कर रही थी। So if इन्हीं conditions इन्हीं values पे काम करता है। जैसे मान लो हमने if के अंदर एक condition लिखा है जो कि 1 रिटर्न करता है, तो
जैसे 1 मीन्स ट्रू, राइट? तो अगर वो ट्रू होता है वो इस ट्रू वाले ब्लॉक में आएगा। द जो कर्ली ब्रेसेस से तुम कवर करते हो उस कोड, मतलब उस कोड को तुम दूसरों से डिफरेंशिएट करते हो, तो अगर इफ वाली कंडीशन वो ट्रू होती है, फर्स्ट ब्रैकेट्स के अंदर जो भी तुम कोड लिखते हो ना वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर वो फॉल्स होती है वो यहाँ पे आ जाएगी फॉल्स ब्लॉक, जहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है इस ब्रैकेट के अंदर, वो वाली कोड की वो पार्ट एग्जीक्यूट होगी। नाउ दिस इज एन एग्जांपल जो मैं भी पूछ रहा था, कैसे चेक करोगे कि योर आउट, सॉरी cancel, कोई डाउट है प्लीज रिपीट। if a greater than b and printf a is greater than, okay, that's good, तुम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हो। if a is greater than b print greater, great guys। so exactly जिन्हें ओके वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। someone was disconnected। okay, हाँ हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा, यही which let's say there are two values and you have to print out which is larger, यही करना है। सो दिस इज द कोड फॉर दैट। ऊपर वाली पार्ट बेसिकली इनपुट लेगी ए एंड बी की, फिर यहाँ पे एज द सिंटैक्स वाज अभी दिखाया था मैंने, इफ एंड देन विद इन ब्रैकेट्स वी आर गोइंग टू मेंशन द कंडीशन, अ कंडीशन दैट कैन ओनली रिजल्ट इन 0 and 1। वैसे तुम कंडीशन कुछ भी डाल सकते हो, कहते हैं अगर कंडीशन के अंदर तुम एक नॉन जीरो वैल्यू डालते हो वो हमेशा ट्रू होगी, राइट? इसका एक बहुत फनी एग्जांपल है, मैं तुमको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। And this is how you compare. You have two values that now those numbers are stored in a and b, you compare them, right? And once compared, printf, जैसे मान लो a greater than b है, तुम a में input डालते हो 10, I will mention it for you, तुम a में input डालते हो 10 and तुम b में डालते हो 20। so tell me guys, a greater than b 0 मतलब true आएगा या false? it will return 0 or 1? ग्रेट, 0 आएगा। सिंस वो 0 आने वाला है तो 0 आने पे वो नीचे एल्स पार्ट में आएगा, द वन विच इज मेंशन्ड एज फॉल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे इस पार्ट, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। जो इफ है ना, इसमें नहीं आएगा प्रोग्राम, प्रोग्राम डायरेक्टली इधर आने वाला है। एंड इट विल प्रिंट परसेंटेज डी, दैट इज द वैल्यू जो हमने बाद में डाला है, बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रिंट होगा बी इज ग्रेटर देन ए। आई विल रन दिस कोड फॉर यू सो दैट आउटपुट क्लियर हो जाएगा सबको। let's run this float। okay, एक सेकंड, मैंने फिर से फ्लोट डिक्लेयर करा है शायद, यस। let's say so guys, हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करा, ए कोई डाउट पूछ रहा है, n not to equal to 0। यूज ऑफ n, n कहाँ पे, यहाँ पे प्रोग्राम में तो मैंने यूज करेंगे मैंने, ओके बैकस्लैश n, ओके। हाँ तो ये आउटपुट देख लो फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा n क्यों यूज हो रहा है। सो ठीक है, हमने दो वेरिएबल int a b इंटीजर डिक्लेयर करी, उसको हम स्कैन करके a b में स्टोर कर रहे हैं, एंड देन ओके ये assumption अभी जरूरत नहीं है, and if a greater than b वो प्रिंट करेगा आउटपुट। so something like this, prompt होना चाहिए, okay, drop two numbers, I will drop let's say 100 and 200, 200 is greater than 100। so ये value 200 is greater than 100 ऐसे आ रहा है because मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी इज ग्रेटर देन परसेंटेज डी और फिर मैंने बी और ए प्रोवाइड करा है। तो इस और जहाँ जहाँ पे तुमने परसेंटेज डी लिखा है गाइस, वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, तुम बाहर में एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो वेरिएबल्स का नाम डालते हो। तो ये जो बी है ये आके इस परसेंटेज डी के साथ सब्स्टिट्यूट हो गई एंड ए आके इस परसेंटेज डी के साथ सब्स्टिट्यूट हो गई। तो वैल्यू फाइनल आउटपुट ये आया 200 इज ग्रेटर देन 100, क्योंकि हमने इफ में कंपेयर करा था। एंड सिंस ए ग्रेटर देन बी वाज फॉल्स, ए में 100 था, बी में 200 था, सो वो नीचे इधर आ गया एल्स में, and this is the output that we got. Now why are we using backslash n? Okay,
इट इज उसको एस्केप सीक्वेंस बोला जाता है एंड आई मेड अ स्मॉल स्लाइड अबाउट इट आई थिंक ओके हियर बेसिकली तुम प्रिंट एफ डालते वक्त जैसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डालते हैं ना %d %ld वॉट एवर वी वॉन्ट टू प्रिंट एज अ वेरिएबल या फिर सीधा सीधा स्ट्रिंग्स डालते हैं उसके अलावा दीज आर फ्यू प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स इन सी उसके अलावा these are some predefined characters in C compiler. For example, \n अगर तुम लिखते हो it will change the line. ठीक है, तो वही मैंने लाइन चेंज करने के लिए वो \n डाला था. अगर तुम \a डालते हो तो प्रिंट करते वक्त एक छोटी सी नोटिफिकेशन टाइप की बेल रिंग करेगी. यू कैन ट्राई इट आउट. अब एक छोटा सा बेल भी रिंग होगा प्रिंट करते वक्त. Now while writing, if you use \t, okay, is that a doubt? Okay, so here. वैसे ही \t है बेसिकली \t प्रिंट करते वक्त जहाँ पे तुम \t डालते हो वहाँ पे वो 4 स्पेसेस इंसर्ट कर देगा थोड़ा डिस्टेंसिंग के लिए. एंड अगर \v यूज करते हो ओके दैट इज क्वाइट फनी. आई कैन शो यू व्हाट \v डज. ओके लेट्स से मैं इसके नीचे एक और वैल्यू डालता हूँ प्रिंट ऐसे कुछ डाल दिया. ठीक है, एंड यहाँ पे \n नहीं डाल के मैं डालूंगा \v. अब देखना आउटपुट में डिफरेंस क्या आता है. सेकंड मैंने कुछ मिस करा है. हाँ सेमीकोलन. ओके आई विल राइट एंड ओके यहाँ पे देखो 1 सेकेंड. हाँ ये 20 इज ग्रेटर देन 10. दिस इज ये वाला पार्ट जहाँ पे हमने \v जिससे पहले लिखा था वो सीधा सीधा प्रिंट हो गया जैसा था राइट. इधर वो डायरेक्टली वैसे ही प्रिंट हो गया. बट आफ्टर दैट वी रोट \v सॉरी आफ्टर दैट वी रोट \v. \v बेसिकली क्या करता है सिर्फ लाइन चेंज नहीं करके वो लाइन चेंज करके कर्सर को उतना आगे ले आएगा जहाँ पे पहली वाली लाइन कंप्लीट हुई थी. तो अगर तुम्हें किसी पैटर्न में प्रिंट करना है तुम ऐसे छोटे छोटे एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर सकते हो. \t का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ. यहाँ पे मैं \t लिखा एंड विल हिट रन. तुम ट्राई कर सकते हो. तुम \a ट्राई कर सकते हो. यू कैन हियर अ बेल. वो मैं भी तुम्हें डेमो नहीं दिखा सकता बिकॉज साउंड आई गेस शेयर नहीं हो रहा. ये देखो 20 और ये अजीब से टेक्स्ट के बीच में 4 स्पेसेस का डिफरेंस है. ओके नाउ सम अदर कैरेक्टर्स आर ओके. हाँ ये कभी कभी यूजफुल होता है इंसर्ट्स डबल कोट \डबल कोट बिकॉज डबल कोट के बीच में हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं राइट. अगर तुम एक और डबल कोट डालते हो तो वो एरर देगा कि इसका मैचिंग पेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा. In that case you can use this. So this was about escape sequence. Okay, sorry. यहाँ तक सबको क्लियर है? जस्ट गिव मी अ क्विक इन्फॉर्मेशन. तुमने कोड ट्राई किया, इज इट वर्किंग फाइन फॉर यू? बेल बजी. ग्रेट गाइस बेल बज गई. It's a vertical tab. Okay. Do you want to continue with the next program or do you want to continue in the next session? I have to post a get to know a lot. You were amazing. Okay, thanks, honey. Your wish. देखो मैं free हूँ. If you all guys are okay, I can continue for like 15 to 20 minutes more. Okay, next session. Continue. Just need to go now. Please continue the next session. Not able to run. Okay, जिन्हें वर्क है वो जा सकते हैं. मैं कुछ नया नहीं कराऊंगा. I will just clear the doubts. जिसको available doubts है. बाकी next session में continue करेंगे. Next session I think we'll start with for loops and we'll print some patterns like triangles and inverted triangles.
ओके श्योर, नेक्स्ट सेशन। किसी को डाउट है तो बता दो, और जस्ट गिव quick confirmation so I can lead you. What is the difference between IDE and compiler? Okay, IDE stands for Integrated Development Environment. Basically, complete session जहाँ पे तुम, जैसे तुमने अगर कंपाइलर यूज करा होगा, फॉर एग्जांपल दिस थिंग हियर, सी कंपाइलर जो हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, दिस इज एन आईडी। यहाँ पे तुम कोड लिख भी सकते हो, तुम्हारी कीवर्ड्स हाईलाइट हो रही हैं, जैसे देखो प्रिंटफ अलग से कलर में, देन डबल कोट में टेक्स्ट अलग से कलर में, सो दिस हेल्प्स यू इन राइटिंग द कोड। बिसाइड्स दैट यहाँ पे अवेलेबल बटन्स हैं, रन, डिबग, स्टॉप, ठीक है। सो इस चीज को बोलते हैं आईडी, जहाँ पे तुम कोड लिख भी सकते हो, कंपाइल करके रन करके आउटपुट भी देख सकते हो। दैट एंटायर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और कंपाइलर इज बेसिकली जो तुम्हारे कोड को जो हाई लेवल लैंग्वेज में है उसे कन्वर्ट कर रहा है इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, सो दैट वो रन होकर आउटपुट शो कर सके। Deepang, hello. I think I think you are clear. Just give a quick information. And the next doubt is why we used percentage D greater than percentage D. Why percentage D twice? Okay. That's because यहाँ पे देखो मुझे दो वैल्यूज प्रिंट करनी थी। आई कुड सिंपली, अगर मुझे सिंपल टेक्स्ट देना था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरे कमेंट्स पे देखो, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ये आउटपुट दिखाना था, ए इज ग्रेटर, तो मैं 1% भी यूज करता, क्योंकि मान लो मैंने ए का वैल्यू दिया था, लेट्स से ए इज 10 एंड बी इज 20, मुझे दो वैल्यू प्रिंट करानी होती, ठीक है, ए और बी, और मैं उसमें से सिर्फ एक आउटपुट दिखाता कि 10 इज ग्रेटर। मैं ऐसे नहीं लिखता 10 इज ग्रेटर देन 5 और व्हाटएवर। तो इस केस में सॉरी आउटपुट आता है 20। मुझे अगर सिर्फ ऐसे आउटपुट दिखाना था 20 इज ग्रेटर, तो मैं डायरेक्टली लिखता परसेंटेज डी इज ग्रेटर एंड दैट्स इट, बाकी ये चीजें हटा देता, राइट, एंड मैं यहाँ पे ए लिखता। सो सिंस ए वाज ग्रेटर, मैंने यहाँ पे एक परसेंटेज डी वैल्यू डाला है, मतलब कंपाइलर यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने ए डाला। बट सिंस मेरे को आउटपुट कंप्लीटली ऐसे दिखाना था 20 इज ग्रेटर देन 10, मैंने यहाँ पे अब ऐसे लिखा 20 इज ग्रेटर देन परसेंटेज डी। नाउ डोंट थिंक परसेंटेज डी इज अ वैल्यू, परसेंटेज डी इज बेसिकली अ एम्प्टी, ऐसे उसको फिल इन द ब्लैंक्स मान लो। कंपाइलर इस चीज को कुछ ऐसा देखेगा, यहाँ पे एम्प्टी ब्लैंक्स होंगी और वहां पे वो कुछ इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस चीज को हम ऐसे फिल कर रहे हैं, ए और बी मेंशन करके। जिस ऑर्डर में तुम्हें फिल करना है उसी ऑर्डर में वेरिएबल का नाम लिखना, ए एंड बी, राइट। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, मैं ऐसे डाल रहा हूँ परसेंटेज डी, सो दैट फाइल को समझ में आए कि मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिप्लेस करनी है। दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग परसेंटेज डी ट्वाइस, राइट। कोकैल्क, आई थिंक कोकैल्क इज अ लिनक्स एनवायरनमेंट सिमुलेटर, उसके अंदर तुम जीसीसी कंपाइलर यूज कर सकते हो। We saw that in a shout out. Okay. What is a backslash r and backslash, ये सेकंड वाला क्या मैं समझ नहीं पाया। backslash r is for carriage return, ये तुम्हें नॉर्मल प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होता, बट जब तुम हैकाथॉन्स या प्रोजेक्ट्स बनाओगे, यू यूज एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर्स जैसे आर्डिनो हो गया, वो सब, तो वो लोग जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं उसमें कुछ कैरेज रिटर्न वैल्यूज होता है, किस फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन होता है, उन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए हम बैकस्लैश आर यूज करते हैं। यू डोंट नीड टू स्टडी दैट इन डिटेल्स नाउ, वो you will get that when you participate in hackathons and ये, और बैकस्लैश आर इतनी यूज नहीं होती अभी, काफी बेटर लैंग्वेजेस हैं। C is normally not used, preferred in such locations. What is the difference between void main and int main? Okay, void and int, देखो वो डेटा टाइप होता है। आई एम यूजिंग int main because जो int main है ना, वो लास्ट में 0 रिटर्न करती है टू टेल द कंपाइलर दैट एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। सो सिंस मैं एक इंटीजर वैल्यू है, राइट, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर एज int main।
Now this is something the compiler expects the main function to be int. अगर मैं void declare करता हूँ ना, example पर error आ जाएगा, देखो मैं void लिख के रन कर देता हूँ, return with a value in function returning void, right? वो return 0 कर लास्ट में, अगर हम int नहीं डिक्लेयर करते तो error आएगी. So that is why we use int main. This is a what do I say, definition of the compiler. Okay, I hope that clears everyone's doubt. Thank you guys. You guys were really an interactive audience.